आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ये खुद ही बता रहा है। ब्लड प्रेशर मीन्स द प्रेशर ऑफ ब्लड। So pressure of blood is defined as the pressure exerted by the blood, on what? On the wall of arteries or blood vessels, by which? By the ventricular contraction and relaxation. Simple. Pressure exerted by the blood on the wall of arteries or the blood vessel by the ventricular contraction and relaxation. जब हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उस वक्त जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज अ ब्लड प्रेशर। और अगर यही प्रेशर सिर्फ आर्टरी में हो रहा है तो उसको बोलेंगे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। What is the exact meaning of that arterial blood pressure then? It is also called ABP, arterial blood pressure. Suppose blood vessels, we are removing here from the blood vessel. So pressure exerted by the blood on the wall of arteries by the ventricular contraction and relaxation. So ventricles contracts and relax हो रही है जिसकी वजह से blood pressure हो रहा है. Suppose this is a heart and this is a ventricle. So this ventricle contracted at the time of heartbeat and blood flows towards the body. Blood flows throughout the body. When this contraction of the ventricles and the relaxation of the ventricles contract means contract हो रही है ventricle and relax. Contraction, relaxation, contraction, relaxation. This is the heartbeat. So contraction of the ventricle and relaxation of the ventricle. But when pressure exerted on the walls of the arteries by ventricular contraction, क्या हो रहा है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल क्या लीड्स करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। जब एक बलून है, बलून में हम जब पानी भरेंगे और उसको जब प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट वेंट्रिकल लीड्स टू द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. दैट इज टू बी कॉल्ड एज एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. Systolic blood pressure. And in normal person, what is the value or what is the measurement of this systolic blood pressure? So systolic blood pressure is measured as a 120 mmHg. This is a unit of the blood pressure, that is 120 mmHg. But this is all about the contraction of the ventricles. But when जैसा आई एम टेलिंग हियर, अभी मैंने बताया कि दो वजह से ब्लड प्रेशर होता है वेसल्स के अंदर और आर्टरीज के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन डन, अब रिलैक्स होता है हार्ट. कॉन्ट्रैक्शन देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन. व्हेन रिलैक्स सो द प्रेशर विल बी डिक्रीज और इंक्रीज? डेफिनेटली डिक्रीज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बलून दबाया तो प्रेशर ज्यादा जाएगा, और जैसे ही छोड़ेंगे तो प्रेशर लिटिल बिट कम होगा. सो देयर इज व्हेन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी बाय द रिलैक्सेशन ऑफ by the ventricular relaxation instead of that
relaxation. What is it called? It called diastolic blood pressure. What it called? Diastolic blood pressure. And it is measured in, it is normal person's diastolic blood pressure should be 80 mmHg. So the systolic and diastolic blood pressure becomes a blood pressure, arterial blood pressure. So how it can be written as? It can be written as 120 by 80. The manner it is denoted by 120 by 80. The exact method of writing blood pressure is that 120 by 80 mmHg. This is the exact process of writing the blood pressure. Suppose this is the blood pressure is 120 by 80 mmHg. So here about two blood pressure we have seen. दो blood pressure हम लोगों ने देखे. एक पहला था systolic blood pressure by the contraction of the heart, contraction of the ventricles, and another is the relaxation of ventricle. When ventricle contract, then blood pressure is a 120 in the vessels. Which vessels? Which going throughout the body. And the relaxation of the when the at the relaxation of the ventricles, then that blood pressure is called diastolic blood pressure and measured is 80 mmHg, and both combines with called it the arterial blood pressure or simple blood pressure, and the method of writing 120 by 80 mmHg. So this is about a simple, this is a simple topic, the blood pressure. Now see the factor, कौन से ऐसे फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं, क्या क्या इफेक्ट करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, और कौन से फैक्टर है हम लोग अभी देखने वाले हैं. लेकिन वो फैक्टर पे जाने से पहले एक और बात बता देता हूं मैं. वो फैक्टर पे जाने से पहले एक बात देख लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 बाय 80. सो व्हाट इज अ पल्स प्रेशर. एक टॉपिक और थोड़ा सा छूट गया मुझसे. पल्स प्रेशर. सो पल्स प्रेशर, व्हाट इज पल्स प्रेशर? द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. The difference between the systolic and diastolic blood pressure is nothing but the pulse pressure. What is pulse pressure? दोनों का डिफरेंस, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम पल्स प्रेशर. व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? 120. व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? 80 is equal to pulse pressure. What is the pulse pressure? So pulse pressure, normal pulse pressure should be a 40 mmHg because all units are in mmHg. So it's a 40 mmHg. Is that clear? And hypo and hypertension. So what is hypotension? चलो भाई ये टॉपिक देख लेते हैं. हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन. सो हाइपो नाम ही बता रहा है. हाइपो मीन्स डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से अगर नीचे जाता है. नॉर्मल रेंज हमको पता है कितनी नॉर्मल रेंज? 120 बाय 80. अगर 110, 100 बाय 60, 100 बाय 70 अगर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन. एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन. नाम बता रहा है, सिंपल है. हाइपो मीन्स कम ब्लड प्रेशर than the normal, and hyper means rise in the temperature than the above the normal level. Is that clear? What is hypotension? What is hypertension? What is pulse pressure? Now factor affecting on the blood pressure. What factors which are responsible for changing the blood pressure? The first factor is cardiac output. So cardiac output. What is cardiac output? मतलब हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है. हार्ट जो है कितना ब्लड पंप कर रहा है पर मिनट, दैट इज टू बी कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट. और वो कितना करता है नॉर्मली? 5 लीटर पर मिनट. इमेजिन भी नहीं करेंगे. 5 लीटर एक मिनट में कितना पंप कर रहा है वो? 5 लीटर पर मिनट ही इज पंपिंग
each minute is pumping 5 liter ब्लड, और जो कार्डियक आउटपुट अगर इससे ज्यादा हो गया तो कैपेसिटी से ज्यादा अगर होता है तो इफ इट इज इंक्रीज, ऐसा तो बहुत रेयर होता है कि कार्डियक आउटपुट ज्यादा, रेयर मतलब सॉरी ये रेयर नहीं होता, ये अगर टेंशन हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है तो कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट अगर बढ़ गई, लंग्स रेट बढ़ गया, बहुत एक्सरसाइज हो गई तो इट इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम पंपिंग ऑफ द हार्ट, सो इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। मतलब अगर कार्डियक आउटपुट जितना हार्ट पंप कर रहा है उससे अगर ज्यादा पंप करने लगा तो डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। नाउ सेकंड फैक्टर इज अ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। Now, what is peripheral resistance? Peripheral resistance means it's a connection between the heart function and the system which are the vessels which are go throughout the body. The blood जो है पूरी बॉडी में जो पहुंचाया जा रहा है वेसल्स के थ्रू, उसमें और हार्ट का जो फंक्शन है दोनों का जो कनेक्शन है दैट इज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और इसका है कि अगर ये बढ़ता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीजेस देन इंक्रीजेस इन अ ब्लड प्रेशर। अगर इंक्रीज होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो ये कैसे इंक्रीज होगा? अब ये हार्ट है, हार्ट फ्लो कर रहा है, हार्ट फ्लो कर रहा है ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स बॉडी, ये बॉडी को फ्लो कर रहा है, लेकिन ऑब्स्टेकल बहुत सारे हैं। अब ऑब्स्टेकल में क्या क्या हो सकता है? डायमीटर ऑफ द वेसल्स, उसकी डायमीटर अगर कम है, वेसल्स की डायमीटर ऑफ द वेसल्स, वेसल्स की डायमीटर अगर कम है और पहुंच नहीं पा रहा है, रुकावट हो रही है, कुछ रुकावट हो रही है ब्लड फ्लो को, हार्ट से निकलने के बाद पूरी बॉडी में अगर कहीं ऑब्स्टेकल आ रहा है, डायमीटर कम है, अगर डायमीटर छोटा होगा तो ब्लड को रास्ता नहीं मिलेगा जाने का, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। और दूसरा वाजो कंस्ट्रिक्टर, सेकंड है वाजो कंस्ट्रिक्टर्स। तो वाजो कंस्ट्रिक्टर में कौन आते हैं? दो हार्मोन है, वाजोप्रेसिन, वाजोप्रेसिन एंड एडीएच, इसका ही नाम एडीएच, वाजोप्रेसिन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ वाजोप्रेसिन एंड एडीएच? इट्स अ डिफरेंट रोल, बट व्हाट इज इंपैक्ट ऑन दैट बॉडी? दे कंस्ट्रिक्ट द मसल्स, मसल्स को कंस्ट्रिक्शन में लाते हैं दोनों, वाजोप्रेसिन हो या एडीएच, मसल्स को जो है कंस्ट्रिक्शन में लाते हैं, जिसकी वजह से वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट होती है, और अगर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुई तो उनके डायमीटर जो है कम होंगे और रास्ता छोटा मिलेगा ब्लड फ्लो होने के लिए, और ताकि फिर ऑब्स्टेकल होगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसी से रेजिस्टेंस बढ़ता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इसी से बढ़ता है, और अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज। नाउ थर्ड फैक्टर इज द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम, अब ब्लड वॉल्यूम कितना रहेगा? तो कितना होना चाहिए ब्लड वॉल्यूम? एक नॉर्मल ह्यूमन में ब्लड कितना होता है? तो नॉर्मल रेंजेस ऑफ द ब्लड इज 4.5 लीटर टू 5.7 लीटर, ये नॉर्मल रेंज है ब्लड वॉल्यूम के। लेकिन ये ज्यादा तो होगा नहीं ये ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। अगर एक्सीडेंटल केस में अगर ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो हो गया या ज्यादा लूज मोशन है, डायरिया है, वॉमिटिंग हो गई, ये स्टूल गया अगर लूज मोशन में, तो ब्लड वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। स्टूल अगर लूज मोशन में जाता है, वॉमिटिंग में स्टूल आता है, या फिर और एक्सीडेंटल या ट्रॉमा में अगर ब्लड लॉस हो गया तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। So where there is a decrease in a volume, there is decrease in a blood pressure. So decrease in a blood volume, decrease in the blood pressure. In case of the accidental, when the blood loss and there is a less amount of the blood, means normal than the normal, then the decrease in a blood pressure. Now fourth is the diameter of the vessels. Diameters of the vessels. Suppose this is the diameter of the vessels. This is a tunica externa, tunica media and tunica interna. Suppose this is the diameter of the vessels and this is the diameter of the same vessels in another person.
ओके, नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? अब डक्ट में कुछ फंसा है, क्या चांसेस हो सकते हैं डायमीटर ऑफ द वेसल्स में अगर ठीक हो गए वेसल्स तो क्या रीजन हो सकते हैं? एक्यूमुलेशन होगा। काय का एक्यूमुलेशन होता है इसके अंदर? इसके अंदर एक्यूमुलेशन होता है सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, इसका एक्यूमुलेशन होगा जिससे इसका डायमीटर कम हो जाएगा। और अगर डायमीटर कम हुआ तो ब्लड फ्लो कैसा होगा? फिर अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया है बीच में, हम लोगों ने कुछ ऑब्स्टेकल लगा दिया, अगर ब्लड वाटर फ्लो हो रहा है और हमने लगा दिया तो क्या होगा? वाटर जो है थोड़ा और ज्यादा फोर्सफुल्ली उसमें से निकलेगा। उसी तरह ब्लड भी होता है, अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आ गए, डायमीटर अगर कम हो गया, सी द कंडीशन ऑफ द डायमीटर, हियर इज द वाइडर डायमीटर, हियर इज द नैरो डायमीटर, तो यहाँ पे जाने में ब्लड को तकलीफ होगी और यहाँ पर इजीली वो नॉर्मल अप टू द नॉर्मल लेवल पर चला जाएगा। तो दिस इज अनदर फैक्टर विच आर अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर that increases the less decrease in a size of the diameter, increase in a blood pressure. So next factor is very important, that is the viscosity of blood. विस्कोसिटी, ये तो सबको पता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन कितना है। अगर खून ज्यादा गाढ़ा है, अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया तो क्या होगा? डेफिनेटली कोई भी बता सकता है ये तो, कि अगर खून गाढ़ा हो गया तो ब्लड प्रेशर कैसे जाएगा? हाई जाएगा। क्या रीजन? जैसे पानी का पंप होता है, पानी का पंप हम लगाते हैं बिल्डिंग में पानी पहुंचाने के लिए, पंप लगाए, अगर पानी फ्लो हो रहा है तो स्पीड से जाएगा, और उसकी जगह पर ऑयल डाल दिया या तेल डाल दिया हमने कोई अलग टाइप का, और फिर हम लोग पंप चालू कर रहे हैं तो प्रेशर क्या रहेगा? स्लो, कम ही रहने वाला, मतलब सॉरी प्रेशर ज्यादा रहेगा और कम अमाउंट में ऑयल वगैरह जाएगा, पानी ज्यादा स्पीड से जाने वाला है, तो उसका मतलब प्रेशर ज्यादा आया इसलिए कम जा रहा है वो जो ऑयल। तो दैट इज द रीजन, द विस्कोसिटी। गाढ़ापन अगर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और अगर खून पतला है तो ब्लड प्रेशर उतना जो है नॉर्मल से नीचे जाएगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। तो ये फिफ्थ फैक्टर था, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल इंटेक और ज्यादा ऑयल फूड खाने से विस्कोसिटी ऑफ जो ब्लड की वो इंक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है एज। अब देखो उम्र, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो उसी तरीके से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। लेकिन क्या रीजन है कि जैसे एज बढ़ेगी, सब जो एज जो है, एज इंक्रीजेस, देयर इज अ इंक्रीज इन योर ब्लड प्रेशर, दिस इज द रेशियो और दिस द प्रोपोर्शन, व्हेन एज इंक्रीजेस इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। क्या रीजन होता है? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल, इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल मतलब ये जो वेसल्स है हमारे आर्टरीज, वेन्स जो है, ये इतने इलास्टिक नहीं रहते, मतलब उनमें लचक नहीं होती, लचक घिसती जाती है, कम होती जाती है। तो हमारी जो आर्टरीज और वेन्स है इनकी लचक, सपोज एक यंग पर्सन है तो वो एकदम मस्त, एकदम ज्यादा रिजिड भी नहीं चलता है, लेकिन अगर जो ओल्ड पर्सन है तो उसके अंदर थोड़ा फ्लैक्चुएशन और लचक कम होंगी। जैसे कि रबर, बहुत पुराना रबर रखा हुआ है 5-10 सालों से, तो कैसा हो जाएगा? एकदम लूज, और जो नया रबर है उसको हम खींच के लगा भी सकते हैं, वापस से वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो आर्टरीज और वेन्स होती है इसकी इलास्टिसिटी खो देने की वजह से जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे बीपी भी बढ़ता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है जेंडर, सेक्स। मेल और फीमेल, मेल में जो ब्लड प्रेशर होता है और फीमेल में, तो मेल में जो ब्लड प्रेशर होता है स्लाइटली, फीमेल में ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है। जैसे 120 है तो फीमेल में 110, 100, और इंडियन वुमेन्स का, और इंडियन वुमेन्स की बात करें तो उनमें तो 100 ही रहता है, उससे भी नीचे आ सकता है, पॉसिबल है। बट अगर यूनिवर्सली बात करें तो मेल्स का जो ब्लड प्रेशर है मेल्स में वो फीमेल से थोड़ा स्लाइटली लोअर रहता है। दैट इज अ डिफरेंट, दैट फैक्टर इज आल्सो अफेक्ट, मींस मेल इज female is slighter, lower than the male. Next factor है venous return, मैं इसको इधर लिखता हूं, वेनस रिटर्न देखो सेम इसके तरह है, ये पेरीफेरल रेजिस्टेंस और वेनस रिटर्न दोनों अपोजिट है। व्हाट इज वेनस रिटर्न? जो हमारा इंफीरियर वेना क्या हुआ और सुपीरियर वेना क्या हुआ, जो आ रहे, जो वेन्स है, जो टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ जो वेसल्स हमारे आ रहे हैं, जो वेन्स है जिनको हम वेन्स बोलते हैं,
उनमें अगर कोई ऑब्स्टिकल्स है या उनका फ्लो ज्यादा आ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट प्रपोर्ट करेंगे ये किसके साथ, हमारे ब्लड प्रेशर के साथ। मगर अगर उनका फ्लो ज्यादा है टुवर्ड्स हार्ट, मतलब हमारे जो वेन्स है जो ऊपर से दिखते हैं ये वेन है और आर्टरी बहुत डीप होती है, दैट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। क्या आर्टरी है वो बहुत डीप है और वेन्स ऊपर है, क्या रीजन है वो मुझे कमेंट्स करके बता देना। तो डायरेक्ट कंसर्न, डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द ब्लड प्रेशर, वेनस फ्लो। एंड द लास्ट फैक्टर विच इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इट्स इमोशन, anxiety, emotion, anxiety, sleep, these all are concerned with the blood pressure। अगर नींद पूरी नहीं होती है और नींद में इनबैलेंस हो रहा है, कभी भी सो गए, जैसे किसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट होती है, किसी की डे शिफ्ट की होती है, अगर सोने में कुछ गड़बड़ी हो गई और स्लीप में, और अगर इमोशन किसी ने टेंशन ले लिया, अगर डोमेस्टिक टेंशन है या एग्जाम का टेंशन है या किसी और टेंशन है, तो अगर टेंशन होता है तो सब इमोशन में आएगा कि इमोशनली अगर टेंशन लेता है तो उसके वेनस जो ऑटोमेटिकली, एंड एंग्जाइटी और सोच और स्ट्रेस, ऑल दीज फैक्टर्स आर slightly responsible for the blood pressure। They are going slow, it leads to the rise in a blood pressure। So this is all about the blood pressure and factor affecting on blood pressure। That is, what are the factors? Once again I want to revise। cardiac output, cardiac pump by the heart से जितना पंप होता है that is the cardiac output। peripheral resistance में हार्ट जो पूरे बॉडी को दे रहा है ब्लड, उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स अगर होते हैं तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उससे बीपी बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम नीचे जाता है तो ब्लड प्रेशर भी नीचे जाएगा, नॉर्मल से नीचे की बात कर रहा हूँ। डायमीटर ऑफ द वेसल्स, अगर डायमीटर ही अगर कम है, छोटा डायमीटर है, तो फिर ब्लड फ्लो नहीं होगा, तकलीफ होगी, टेंशन आएगा और उसी की वजह से प्रेशर आएगा। विस्कोसिटी, अगर गाढ़ा है खून तो फिर ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एज, as the age increases, there is an increase in a blood pressure। and now next is the gender, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, तो है यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। मेल का तो नॉर्मल 120/80 रहेगा, लेकिन फीमेल्स का स्लाइटली थोड़ा सा कम रहेगा। वेनस रिटर्न, अब जो फ्लो हार्ट की तरफ आ रहा है, मतलब वेन्स में से, उसमें अगर कोई ऑब्स्टिकल्स है तो डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर। एंड द लास्ट इज इमोशन, स्लीप, एंग्जाइटी, टेंशन, ऑल फैक्टर्स आर हियर। इफ दे आर in balance, then it leads to the increase in a blood pressure। So this is all about the blood pressure। Thank you।